We are continuing now with our teaching on King David. हम दाऊद के बारे में जो पढ़ाई या सीख कर रहे थे उससे हम आगे बढ़ते जाने वाले हैं। We saw before how King Saul, we saw that God chose him, and then King Saul made many mistakes of disobedience, and then God had to reject him. हमने देखा कैसे साउल राजा को परमेश्वर ने चुना, उनके कई गलतियों के वजह से और पाप के वजह से कैसे परमेश्वर ने उन्हें ठुकरा दिया। And it was Saul's own doing that made God reject him. ये साउल का खुद का करना था क्योंकि परमेश्वर ने उसे ठुकरा दिया। And last week we tried to understand why did God choose David and did not. Let me put it this way: why did God choose David among everybody else to be the next king? क्यों परमेश्वर ने दाऊद को चुना इस्राएल का राजा बनने के लिए दूसरे राजाओं को ना चुनते हुए। And we understood that it has to do with the heart. और उसका मुख्य कारण यह है कि उनके हृदय को परमेश्वर ने देखा। And one of the reasons why God chose David was because David kept God's laws inside of his heart. और दूसरा वजह यह है क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के व्यवस्थाओं को अपने हृदय में संभाल कर रखा और पालन किया। And this is something very important for us to understand, that the heart is the center of life. और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है समझने के लिए। हृदय मनुष्य के केंद्र है, जीवन के या फिर मनुष्य के। I mentioned last week that we could spend a whole year just focusing on what the Bible says about the heart of man. मैंने गए सप्ताह आपको ऐसे बताया था कि एक पूरा साल हम बिता सकते हैं ये समझने के लिए कि मनुष्य के हृदय को परमेश्वर कैसे परखता है। Because once you understand the importance of your heart, your life will change. आमीन। एक बार परमेश्वर के दृष्टिकोण से कैसे परमेश्वर हृदय को देखता है आप उसे समझ लो तो आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। Once your heart is the same as the heart of God, you will do everything the way God wants you to do it. आमीन। एक बार जब आपका हृदय परमेश्वर के हृदय से मेल मिल जाए या फिर एक समान हो जाए तो आपका जीवन, आपका सोच बदल जाएगा। You see, once you invite Jesus into your heart and he takes over your heart, then your life will completely change. एक बार परमेश्वर के अपने हृदय को दे दो और परमेश्वर आपके हृदय में आ जाए तो आपका जीवन पूर्ण रीति से बदल जाएगा। This is the beauty of the Christian faith. ये परमेश्वर में, मसीह में विश्वास करने के विश्वास का एक सौंदर्य या फिर सुंदरता है। You see, when we change faiths, like I was born a Hindu, when I changed my faith, it wasn't because I wanted to change my religion. और मैं एक हिंदू विश्वास में था, उसमें से मसीह विश्वास में आया, वो मुझे बदल दिया इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे अपना जात बदलना था या फिर विश्वास बदलना था। Because what happens is the moment you encounter Jesus Christ, you will know there's something different about Jesus compared to the other gods. जिस क्षण या फिर समय से परमेश्वर का आमना सामना आपको हो या फिर आप परमेश्वर को जान ले, उस समय से, उस क्षण से आपके जीवन में बदलावटें होने लगेगी। If you take your time and you read the words of Jesus, you will realize there's something different about Jesus. अपना समय लेकर वचन को मनन करने के लिए आप समय लोगे तो आपको समझ में आएगा मसीह के बारे में या फिर यीशु मसीह में कुछ अलग है। The first thing that Jesus does when he enters our life, when we make him Lord, is that our heart will change. पहले चीज या फिर पहले कार्य जब हम करें और मसीह हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो हमारे स्वभाव या फिर हमारे जीवन में बदलाव आने लगेगा या फिर सोच में। And this can happen through reading the Word of God. और ये तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करोगे। See, when you read the Word of God, you understand the heart of God. जब आप वचन को मनन करोगे, पढ़ोगे, तब आप समझ पाओगे मसीह के हृदय को या फिर उसके सोच को समझ पाओगे।
Don't just listen to what I am saying or any of the preacher says. When you read the word of God for yourself, you will see what God's heart is saying. आप सिर्फ मेरा सुनना या फिर मेरा प्रचार या फिर दूसरे पासवान का प्रचार सुनने से नहीं, वचन को पढ़िए और वचन से परमेश्वर आपसे बातें करे। And when you understand God's heart, you will know what God likes and what he doesn't like. जब आप परमेश्वर के हृदय को समझ पाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। When you understand God's heart, you will know what is right in the eyes of God and what is wrong in the eyes of God. और जब आप परमेश्वर को समझ पाओगे, तभी आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है और परमेश्वर की दृष्टि में क्या गलत है। You will know हालेलुया। exactly what is sin and what is not sin. आपको तभी समझ में आएगा कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। You know, one of the best gifts that God has given us is his commandments. सबसे अधिक महत्वपूर्ण या फिर लाभदायक सम्मान जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उनकी व्यवस्थाएं। Many people misunderstand the laws and the regulations of God. परमेश्वर की व्यवस्थाओं को और व्यवस्थाओं को या फिर न्याय प्रमाणों को कई लोग गलत रीति से समझते हैं। They think that these laws and these restrictions are chains around your hands. वो ऐसा सोचते हैं कि ये व्यवस्थाएं एक जंजीर है मेरे हाथों को या फिर मेरे जीवन को जो बंधे रखती। In other words, God is someone who doesn't want you to enjoy life. क्योंकि ऐसा है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो आपके जीवन को अनुभव या फिर संतुष्टि ना ले, ऐसा सोचे। But when you understand God's heart, you will understand that the laws are there to protect you. जब आप परमेश्वर को समझे, उनकी व्यवस्थाओं को समझे, तभी आपको समझ में आएगा वो व्यवस्थाएं आपके संरक्षण के लिए या फिर आपके देखभाल के लिए है। As parents, we put laws on our children. हम एक माता पिता के दृष्टिकोण से या फिर जीवन से हम बच्चों के ऊपर व्यवस्थाएं या फिर लागू लाते हैं, क्योंकि We don't do this because we want to put chains on them. We do this because we want to protect them. हम उनके ऊपर जंजीर जकड़ने के लिए या फिर बंदी रखने के लिए नहीं, ताकि उनकी रक्षा करने के लिए हम वो करते हैं। हालेलुया। And until you don't understand the heart of your parents, you will always think that your parents don't understand you. आमीन। जब तक आप अपने माता पिता के हृदय को नहीं समझे, आपको लगेगा कि मेरे माता पिता मुझे नहीं समझते। And your parents just don't want you to enjoy life. और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे माता पिता मैं जीवन में आनंद लूं, ऐसा नहीं चाहते हैं। But when you understand their heart of protection, you will realize how much they actually love you. जब आप उनके हृदय के देखभाल और उनके प्रेम को समझोगे, तब आप समझोगे कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। So when your heart is transformed by the word of God, you will love the word of God. जब आपके परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके हृदय में बदलाव या फिर परिवर्तन आता है, तभी आप समझोगे परमेश्वर के प्रेम को। You will understand why you should never lie. और तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। You will understand why you should never steal when you understand the heart of God. तभी आपको समझ में आएगा क्यों मुझे चोरी नहीं करना चाहिए, जब मैं परमेश्वर के हृदय को समझ पाऊं। And all these laws that are in the Bible, they are there because of God's love for us to protect us from each other. और ये सभी व्यवस्थाएं वचन में इसलिए दी गई है ताकि हमारी रक्षा कर सके या फिर हमारा संरक्षण परमेश्वर कर सके सब हानियों में से। You see, God tells me in the Bible not to steal from Brother Vibin so that Brother Vibin does not get hurt. परमेश्वर वचन से इस प्रकार कहता है कि मैं ब्रदर विबिन से, भाई से चोरी ना करूं, ताकि उनके हृदय में चोट पहुंचे मेरे चोरी करने की वजह से। So the laws are there so that you don't hurt the other people that God also loves. व्यवस्थाएं इसलिए दी गई है ताकि आप दूसरों पर हानि ना पहुंचे, ताकि उन पे चोट ना पहुंचे, इसके लिए व्यवस्थाएं लागू की गई है। So once your heart has changed, you will understand how beneficial it is to keep God's commandments.
एक बार आपका हृदय बदल जाए तब आपको समझ में आएगा कितना उपयोगदारी लाभदायक है परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करना, उसको अपने हृदय में संभाल कर रखना। Once your heart changes, you will understand the holiness of God. एक बार आपका हृदय बदल जाए तब आपको समझ में आएगा परमेश्वर की पवित्रता का बहुमूल्य। And you will understand why not everybody is going to go to heaven. और इस तब हमें समझ में आएगा क्यों सब स्वर्ग में नहीं जाने वाले। You will understand that God's heart is a heart of love and He does not allow evil in His presence. और तब हमें समझ में आएगा क्यों परमेश्वर का प्रेम एक क्रोध या फिर निर्दय नहीं है, या फिर एक प्रेमी हृदय है जो हमारी अच्छाई चाहता है। See, if someone tries to hurt your son or your daughter, you will destroy them. यदि आपके बेटे या फिर बेटी को कोई हानि पहुंचाना चाहे तो हम उसका नाश करेंगे जरूर। This is exactly what God wants to do with you and me because we have hurt each other. यही चाहता है परमेश्वर आपसे और मुझसे, ताकि हम एक दूसरे को चोट ना पहुंचा सके। But God, in His love and mercy, forgives us and gives us the opportunity to change. और परमेश्वर अपने प्रेम में, अपने दीर्घ प्रेम में वो चाहता है कि वो हमें मौका दे ताकि हम फिर से एक दूसरे को चोट ना पहुंचा सके। The Bible says that everyone has sinned and fallen from the grace of God. वचन कहता है कि सभीयों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा में गिर चुके हुए हैं। In other words, no matter how good you think you are, your heart is corrupted and full of darkness. एक दूसरे शब्दों में, यदि आप कितने भी अच्छे हो और आपका हृदय में पूरा कठिनता ही या फिर क्रोध या फिर पाप या फिर क्लेश से भरा हो, you are still full of darkness and you will not enter heaven. और आप पूरे अंधकार से भरे हैं और आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। It is only when Jesus Christ enters your heart and you give Him that space in your heart that can start to wash away all that darkness. आमीन। उसी क्षण ये सब हो सकता है जब परमेश्वर को न्योता दोगे अपने हृदय में, वो आपके हृदय में प्रवेश कर सभी पाप को, सभी दोष को और अंधकार को धो ले अपने That's why प्रेम से। last week we read in Proverbs chapter 4, verse 23, it says, keep your heart, means guard your heart with vigilance. Let's read that verse again. Proverbs chapter 4, verse 23. नीति वचन 4 अध्याय 23वां वाक्य। Go ahead and read it, brother. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। So it says, Amen. above everything else, guard your heart, because from it flows the springs of life. आमीन। वहां ऐसा लिखा है कि हर चीजों में अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसमें से जीवन का स्रोत बहता है। It says, above everything else. सब चीजों से अधिक। In other words, don't worry about your image. अपने सोच सामूहिक लोग में मेरा चरित्र कैसा है या फिर मैं कैसा दिखता हूँ, इसके बारे में मत सोचिए। Don't worry what people think about you. ऐसा मत सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या सोचते हैं। Don't worry so much about your finances. या फिर अपने पैसों के बारे में अधिक ना सोचिए। Think about your heart. Focus on your heart and make that right before God. और अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख सही कीजिए। You see, because if your heart is not in the right place and it is not full with the word of God, then no matter what you do in life, you will fail. यदि आपका हृदय और परमेश्वर के साथ आपका मिलन सही स्थान पर नहीं हो, चाहे आप क्या कुछ ना कर लो, आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। See, King David made many mistakes. दाऊद राजा ने अपने जीवन में कई गलतियों को किए। He made such mistakes that God could have killed him right there and then because he represented God. दाऊद राजा ने इतनी गलतियां की है कि परमेश्वर क्षण भर में उनकी मृत्यु करवा सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की छाया के प्रतीक थे। And David deserved death. और दाऊद को मृत्यु निश्चय होनी चाहिए थी। But because David's heart
was in the right place and he understood his mistake, God saved his life. आमीन। दाऊद का हृदय परमेश्वर जानता था और वो परमेश्वर से मिला हुआ था, इसके लिए परमेश्वर ने उसकी गलतियों को माफ कर कर उसे जीवन दिया। So you need to focus on your heart and what you are letting inside of it and what is coming out of it. हमें इसके लिए अपने हृदय पर हमें ध्यान देना चाहिए अधिक, क्या उसमें आप प्रवेश करवाते हो और क्या उस हृदय से वापस बाहर जाता है। हालेलुया। There's a very important foundation verse in the New Testament that says, "From the abundance of the heart speaks the mouth." आमीन। ये एक नींवधारी वाक्य है जो बहुत ही बहुमूल्य और जरूरी है। अपने हृदय की भरपूरी में से मेरा जीव आशीष श्रोता कहलवाता। So if you want to learn about someone, learn to listen to their words. यदि आप किसी से कुछ सीखना चाहते हो तो उनकी वाणियों को सीखने की कोशिश कीजिए। If you want to know the reality of someone, who they are in the inside, listen carefully to what things they are talking about. आमीन। यदि किसी के हृदय को जानना है या फिर उनके गुप्त हृदय के सोचों को जानना है तो उनकी वाणियों को ध्यान दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि वो कैसे व्यक्ति हैं। They might act on the outside as somebody, but then through their words, you can see what is deep down inside their heart. आप देख पाओगे कि वो बहुत ही अच्छा दिखने में और बात करने में अच्छा व्यक्ति है बाहरी रूप से, लेकिन उनके वाणियों से, उनके चाल चलन से आपको समझ में आएगा उनके हृदय में क्या रहा है। Because the Bible says, from the abundance of the heart speaks the mouth. हृदय की भरपूरी से उमड़कर मुंह से वाणियां निकलती है। Now, I'm not saying that if once in a while you say the wrong thing, that your heart is completely corrupted and that you're a horrible person. I'm not saying that. हम मनुष्य है, कभी कभी गलतियों हमारे मुंह से या फिर वाणियां निकल जाती है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं पापी हूं, मेरे हृदय में बहुत खोट और कठोर है, ऐसा नहीं मैं कहना चाहता। But what I'm saying is that if someone is constantly talking a certain way and you know it is wrong, you know for sure their heart is full of that darkness. यदि कोई निरंतर कपट या फिर छल भरी बातें करता है तो उनकी वाणियों से आपको समझ में आएगा कि उनका हृदय कैसे भरा पड़ा है और उनके हृदय में क्या वास करता है। For example, I have a friend many years ago who every once in a while he would say dirty jokes, sexual dirty jokes. मेरा एक दोस्त था कई सालों पहले, कुछ ऐसे कभी कभार इधर उधर ऐसे लैंगिक मजाके या फिर जोक बोला करता था। And when I read this verse, I understood this man is behind doors committing adultery or watching pornography or doing something wrong because his heart is full of sexual desire and sin. और मेरे को इस वाक्य पढ़ने के बाद समझ में आया कि बंद कमरे के पीछे वो लैंगिक पापों को करता है या फिर पापी चीजें या फिर दुष्ट भरी चीजें देखता है और उस पाप का अधीन है। So we understand the person and their nature by what comes out of their mouth on a regular basis. और हम एक व्यक्ति के स्वभाव या फिर उनके गुप्त स्वभाव को तभी समझ पाते हैं जब उनके मुंह से निकलने वाली वाणियों से हमें समझ में आता। If there is someone that is constantly talking about their problems, constantly saying this is wrong with me, this is wrong, this is not working out, you know that person is a very negative person. यदि कोई व्यक्ति निरंतर कमियों को बोलते रहता है, मेरे जीवन में ये सही नहीं, वो सही नहीं, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो वो एक बहुत ही कम सोचने वाला या फिर गलत सोचने वाला एक व्यक्ति है। If there's someone who's always complaining about their problems, you know they are someone that probably is addicted to feeling sorry for themselves. और कोई व्यक्ति हमेशा कमियों के बारे में, जीवन की कमियों के बारे में, दोषों के बारे में कहता है, तो अपने खुद के जीवन के बारे में बुरा सोचने वाला या फिर हाय करने वाला व्यक्ति। When someone comes to you with a problem, यदि आपके पास कोई when someone comes to you with a problem, do you listen to them or do you tell them your problem? यदि आपके जीवन में कोई समस्या लेकर आए
तो क्या आप उनकी समस्या को सुनते हो या अपने समस्या को आप उनको बताते हो? If you're someone that doesn't listen to them but just tells them your problem, then you are someone who always thinks about yourself. यदि आप कोई किसी को सुनते नहीं परंतु अपने कमियों को बताते रहते हो, तो आप अपने जीवन को हाय करने वाले या फिर कम समझने वाले व्यक्ति हो। See, once the word of God has entered your heart, once Jesus Christ has entered your heart, all these things start to change. आमीन। एक बार परमेश्वर आपके हृदय में प्रवेश करे तो हर चीजों में बदलावटें आने लगती है, Because your desires will change. क्योंकि आपकी सोच में बदलावट आती है, Your hopes for the future will change. आपके भविष्य के बारे में जो आशाएं सोच है उसमें बदलावट आती है। The problems will not be as important as you think they are. आपकी समस्याएं उतनी जरूरी नहीं रहेगी जितना आप सोचते हो कि वो जरूरी है। The moment you fill your heart with the Word of God, through reading the Word of God, Jesus becomes Lord of your mouth. हम जब आप परमेश्वर को अपने हृदयों में भर दोगे, आपकी वाणियां परमेश्वर की वाणियां बन के निकलने लगेगी। You will no longer speak out of fear. आप कभी भी डर से बातें नहीं करोगे, You will speak out of faith in the Word of आप God. परमेश्वर के वचन के आधार पर विश्वास से बातें करोगे। Romans chapter 5 verse 5 says, hope in Jesus Christ does not bring shame. रोमियो का पत्री 5:5 में ऐसा कहते हैं, परमेश्वर में आशा रखना कभी आपको शेम नहीं लाएगा। Well, is that ulanga? Maybe ulang something? Some word like that? I'm not sure. It's complicated. उल्लंघन is trouble or hindrance. Okay. Another version says, faith or hope never disappoints. आशा और विश्वास कभी तुम्हें निराश या फिर हताश नहीं करे, Because your hope will be in Jesus Christ. क्योंकि आपकी आशा परमेश्वर में है। लज्जित, You're someone that is always disappointed, always worried, always in depression. You have not understood the power of the Word of God in your life. यदि आप हमेशा निराश, हमेशा हताश, हमेशा निराशित सोच आपके जीवन में आती है, तो आपके हृदय में और आपने परमेश्वर को कभी जाना नहीं और परमेश्वर की आशा और विश्वास आपके जीवन में नहीं। The way these teachings are going right now about King David, it seems like God wants us to focus a little more in the heart. आमीन। जिस तरीके से इस सीख या फिर एक वचन को परमेश्वर लेके जा रहा है, परमेश्वर चाहता है कि अपने हृदय पर या फिर सुनने वाले व्यक्तियों के हृदय पर ध्यान दिए। Because this was the key for David's survival was his heart. आमीन। दाऊद इसीलिए जी पाया या फिर इसीलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि उसके हृदय को परमेश्वर ने देखा और उसके हृदय के वजह से। Every victory in the life of David was based on his faith in the power of God. हर एक विजय दाऊद के जीवन में इसीलिए उसे आ पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा और इसीलिए वो विजय होता गया। As we go through these series, you will see that David was just someone who was put aside and ignored by everybody. दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो ठुकरा कर अलग कर एक कोने पे डाला गया हुआ एक व्यक्ति था सभियों से। Nobody really thought about him as anything important. किसी ने भी दाऊद के बारे में महत्वपूर्ण या फिर जरूरी है नहीं समझा। His own father did not care much about him. उनके खुद के पिता ने उनके बारे में अधिक सोचा नहीं। But God saw inside the heart of David. That's why he told Saul, he said, I have chosen somebody else to be the next king, someone who is after my own heart. इसके लिए साउल राजा ने जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने साउल से कहा, मैंने दूसरे एक राजा को चुन लिया है जो मेरे हृदय से है और मेरे हृदय के हिसाब से है। In other words, he chose someone that will obey what God is saying to do. दूसरे सरल शब्दों में कहे, परमेश्वर ये कहना चाहता था कि
मैंने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो मेरी आज्ञाओं का पालन करे और मेरी वाणियों को समझे और पालन करे। He chose someone who would obey God without even understanding what God is telling him to do. आमेन। वो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना जो शायद उसे समझ भी ना आता हो कि परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर की वाणियों का पालन करे। He chose someone whose heart was so filled with faith in God that even it didn't make sense to him and there was no logic behind what God was telling him to do, he still would do it. परमेश्वर की वाणियां इतने उसके हृदय में भरी हुई थी, जब जो कुछ भी परमेश्वर उसे कहे दाऊद से, उसे समझ ना आता हो, शायद बुद्धि में वो समझदार ना लगे, फिर भी वो पूर्ण रीति से अपने भरे मन से एक अंधे के समान उसे पालन करता था। You know what was David's training to become king? एक दाऊद को राजा बनने के लिए उसका परिश्रम या फिर परीक्षण क्या था, आपको पता है? You know, he did not learn how to fight. उसने कभी सीखा नहीं कैसे योद्धा या फिर युद्ध करना है। He was not a warrior. वो एक योद्धा नहीं थे। He didn't go to any special army to train. या फिर कोई परिशीलन के लिए नहीं गए थे वो ट्रेनिंग कैंप में। He wasn't someone who was a bodybuilder and full of muscle and strength. और उनके शरीर में बहुत मांस या फिर बड़े अजान शक्ति नहीं थी उनमें। You know what was David's training? उनकी परिश्रम क्या थी, आपको पता है? He was a worshipper of God. वो एक परमेश्वर के आराधक थे। आमीन। While he was taking care of the sheep, he would sit down and worship God. वो अपने भेड़ों का चरवाहा बनते समय वो बैठकर परमेश्वर की आराधना करते थे। While he हालेलुया। would wait in the fields and watch nature, he would be amazed at God's creation and write songs for God. प्रकृति का सौंदर्य अनुभव करते समय परमेश्वर की महिमा कर कर वो परमेश्वर के लिए भजन गाते थे या फिर गीत लिखते थे। That's why the book of Psalms is a book written by King David. आमीन। इसके लिए भजन संगीता दाऊद राजा के द्वारा रचित गई, लिखी गई हुई है। I believe many of those songs we have were written while he was still a young teenager, just taking care of the sheep and on his own with the presence of God. मैं विश्वास करता हूं कि अधिक से भजन उसमें से जो लिखे गए वो एक बालक थे, परमेश्वर के आनंद लेते समय परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर के प्रेम को समझते हुए उन्होंने लिखा हुआ भजन है वो सब। That's why he was someone who could defeat a giant. इसके लिए वो एक अजान व्यक्ति को या फिर एक बड़े अजान व्यक्ति को हरा पा सके, गोलियात। While the whole Israeli army was shivering out of fear, this one young boy said, "No, I believe in the word of God and I know he will do it for me." एक पूरी इस्राएल की सेना डर कर लथपथ होकर खड़ी थी, तब एक बालक आकर कहता है, नहीं, मैं इसे हरा सकता हूं। वो युद्ध धैर्य के साथ आगे बढ़ा। See, David came to a point where he loved God so much and understood who God was, he actually got angry and said, "How dare this uncircumcised giant insult the people of God?" दाऊद इतना क्रोधित हो गया था कि इसने इतना सोचा कि ये ना परिचय लेने वाला व्यक्ति कैसे मेरे लोगों को ऐसे ललकार सकता है। In other words, he said, "How can this unbeliever make fun of Christians and how can he still be alive?" आत्मिक शब्दों में कहे तो कैसे ये ना विश्वासी या फिर अविश्वासी आकर मसीह के लोगों पर ललकार कर कर अपना धैर्य हिम्मत जता सकता है। How can any unbeliever make fun of the people of God? कैसे एक अविश्वासी परमेश्वर की लोगों का दट्टा या फिर मजाक उड़ा सकता है? This is the love he had for God and his people. ये प्रेम था उसके हृदय में परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए। When you get that love in your heart, you will change everything around in your life. जब उस प्रेम को आपके हृदय में आपको पा सके तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। So David overcame the giant in front of him because his heart was full of the word of God. और दाऊद परमेश्वर के द्वारा उसके सामने खड़े रहने वाले शत्रु को, अजान शत्रु को हरा सका
क्योंकि परमेश्वर की वाणी उसके हृदय में थी और उसका सामर्थ और शक्ति उसके साथ था। Because of that heart, he was able to depend on God's power and not his own. क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर और परमेश्वर की वाणी थी, वो अपने शक्ति पर नहीं, परमेश्वर की शक्ति पर आश्रय रखकर आगे बढ़ा। He could depend on God's strategy for battle and not his own mind. वो परमेश्वर के षड्यंत्रों पर विश्वास रखा रणभूमि में, ना कि अपने सोच और अपने बुद्धि पर। You know, when your heart is full of God's word, God will show you ways to succeed that nobody else knows. आमीन। जब आपके हृदय में परमेश्वर की वाणियां भरी पड़ी हो, तो परमेश्वर आपको दिखाएगा मार्ग, किस तरीके से आपको विजय प्राप्त करना है। The Bible says that um, God shows us how to prosper without adding any sorrow to it. परमेश्वर हमें सिखाता है कैसे आशीषें प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, बिना कुछ दुख या फिर क्लेश के। In other words, what people take 10 years to do, you can do in 1 month. दूसरे शब्दों में, जो लोगों को 10 साल लगे चीजें करने के लिए, वो आप एक दिन में कर सकते हैं। Because God shows you the strategy when you depend on Him and Him alone. परमेश्वर हमें आपको उस षड्यंत्रों को या फिर उस गुप्त बातों को सिखाता है, जब आप उसी में आप अपना विश्वास और आश्रय रखें। You don't depend on what you have or you don't have. आप उस पर भरोसा नहीं रखते हैं कि क्या आपके पास है, क्या आपके पास नहीं है। You don't depend on who loves you or who doesn't love you. आप उस पर निर्भर नहीं करते हो कि कौन आप मुझसे प्रेम करता है, कौन नहीं करता है। You don't depend on who agrees with you or who does not agree with you. आप इस पर विश्वास नहीं रखते कि कौन आपके साथ सहमति लेता है, कौन नहीं लेता है। You don't depend on who understands you or doesn't understand you. और इस पर नहीं निर्भर करता कि कौन आपको समझे, कौन आपको नहीं समझे। A true leader only depends on God. सच्चा नेता या फिर अधिकारी सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर और विश्वास और आश्रय रखता है। A true leader does not depend on his followers. एक अच्छा नेता अपने अनुयायियों पर विश्वास नहीं रखता। He just continues with the purpose of God in his life, and the people will see God's presence on you, and they will automatically start to follow Christ. आमीन। एक अच्छा सरल विश्वास करने वाला या व्यक्ति या फिर नेता, वो आगे बढ़कर जाता है, चाहे पीछे कोई भी ना हो। उसका आश्रय, उसका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर होगा और आगे बढ़कर वो सफल पाते जाएगा। Because David had God's heart, he was able to reject the gifts of man. क्योंकि दाऊद का हृदय में परमेश्वर था, इसके लिए मनुष्यों के द्वारा गया किया सम्मान या फिर गिफ्ट उसने नहीं स्वीकारा। But he focused only on what he could give God from his own life. उन्होंने सिर्फ उसी चीज पर ध्यान बटाया, सिर्फ उसी पर बटाया कि मैं दाऊद क्या परमेश्वर को दे सकता हूँ, मेरा हृदय से मैं क्या दे सकता हूँ। He wasn't someone who was there just to receive from God money and blessings and fame and things to work out for him. वो ऐसा व्यक्ति या फिर राजा नहीं था कि मुझे शौर्य, पैसा, धन, संपत्ति सिर्फ मिले परमेश्वर से, वैसा नहीं था। His heart was the heart of God, where he said, "How can I serve you, my Creator?" उनका हृदय सिर्फ परमेश्वर में था और उन्होंने ऐसा कहा, हे मेरे सृजनहार, मैं तेरी सेवा कैसे कर पाऊं। हालेलुया। Jesus does not come to earth to become a guru. परमेश्वर इस दुनिया में एक गुरु बनने के लिए नहीं आए। Jesus does not come to earth to be served. परमेश्वर यहाँ एक सेवक के तौर पर सेवा करवाने के लिए नहीं आए। Jesus came to serve and to give his life for you and for me. परमेश्वर एक सेवक बनकर सेवा देने के लिए, सेवा करने के लिए और अपना जीवन देने के लिए आए। We have to imitate Jesus in our lives. हमें परमेश्वर की प्रतिछाया हमारे जीवन में लानी चाहिए। Until you don't get the heart of David, which was the heart of Jesus Christ, you will not succeed in anything you do in life.
आमीन। जब तक आपको दाऊद का हृदय, जो परमेश्वर का हृदय या फिर प्रतिछाया थी, जब तक आपके जीवन में ना हो, आप जीवन में सफल नहीं पाओगे। Until हालेलुया। you're not willing to sacrifice yourself, even unto death, for those who don't deserve it, you will not understand what God can do for you. जब तक आप परमेश्वर को नहीं अपने आप परमेश्वर के लिए अपने आप को नहीं त्याग दोगे और उस प्रेम को नहीं समझोगे, आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। You have to be willing to give up everything for those who don't deserve it. आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा उस व्यक्ति के लिए या फिर उस समूह के लिए जो उसके योग्य भी नहीं। Jesus went to the cross, the Bible says, when you and I were still in sin. परमेश्वर काल्वरी क्रॉस पर तब गए जब आप और मैं पाप में ही थे। When Jesus was on the cross and they were laughing at him, he didn't say, God, destroy these people because they are making fun of me. जब परमेश्वर काल्वरी क्रूस पर लदे हुए थे और लोग उनकी निंदा मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा नहीं कहा, इन्हें नाश कर दो क्योंकि ये मेरा मजाक उड़ा रहे। God said, forgive them, for they still don't understand what I have done for them. परमेश्वर ने कहा क्षमा कर दीजिए क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं पता कि उस क्या कर रहे हैं। And forgive them because they don't know who I am. उनकी क्षमा कर परमेश्वर क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं कौन हूं। They don't understand what this sacrifice on the cross is going to be for them. और ये नहीं समझते कि काल्वरी क्रूस पर क्या त्यागा या फिर क्या अर्पण किया जा रहा है। See, the moment you understand what Christ did on the cross, you will surrender completely to Jesus Christ. आमीन। जिस क्षण आपको समझ में आ जाए कि परमेश्वर ने काल्वरी क्रॉस पर क्या किया है, उस क्षण आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए सौंप दोगे। Praise the Lord। What Christ has done is that he has made it possible for him to come and live inside your heart. परमेश्वर ने ये असाधारण कार्य को सरल करके दिया कि क्या कैसे वो आकर मेरे हृदय में वास कर कर जी सकते। The moment he enters your heart, your life will change completely. जिस क्षण वो आपके हृदय में प्रवेश करे, उस क्षण से आपका जीवन पूर्ण रीति से बदल जाता है। हालेलुया। Today I had prepared different verses to share, but God has led me today to make this message very clear to you. आमीन। मैंने एक दूसरा संदेश बनाया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे ले चला दूसरे एक संदेश में, स्पष्ट रीति से आपके हृदय में बात करने के लिए। And this is so because I know that some of you that are listening today, your heart is still in the wrong place. क्योंकि मुझसे सुनने वाले कईयों का हृदय आज भी गलत स्थान पर है। इसके लिए Your heart is still focused on your problems. आपकी हृदय अभी भी आपकी समस्याओं पर भरी पड़ी है। Your heart is still focused on your past. आपका हृदय अभी भी आपके पीछे बीती हुई जिंदगी पर पड़ी है। Your heart is still not filled with the love of God. आपका हृदय अभी भी परमेश्वर के प्रेम से नहीं भरा पड़ा है। You need to today surrender your heart to Jesus Christ once again. आपको आज एक और बार अपने हृदय को परमेश्वर की ओर समर्पण करना है। हालेलुया। Maybe you have prayed the salvation prayer before. आपने रक्षा का प्रार्थना पहले भी किया होगा। Maybe you have grown up in church. आप एक कलीसिया में बड़े होंगे शायद। Maybe you have accepted Christ a while back. अपने मसीह को कुछ क्षण पहले या फिर साल पहले स्वीकारा होगा रक्षक के तौर पर। But today you need to completely empty your heart from everything and let Jesus be the only one in your heart. आज अपने हृदय को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के सामने खोल कर रखकर और परमेश्वर को स्वीकारना है आपके परमेश्वर के समूह। We read in Proverbs chapter 4, you have to guard above all things your heart because from it comes out life. नीति वचन 4:23 में हमने पढ़ा सबसे अधिक मन की रक्षा करना क्योंकि उसमें से जीवन का स्रोता बहता। So right now I want you to pray with me. अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस क्षण प्रार्थना कीजिए। Say, Lord Jesus, परमेश्वर यीशु मसीह,
I consider you the Lord of my life. मैं आपको अपने जीवन का प्रभु ऐसा मानता हूँ। I surrender all my desires at your feet, मेरे जीवन की सभी अभिलाषाएं मैं आपके पद पर लाद कर पीछे रखता हूँ and I take only your desires into my heart. और मैं सिर्फ आपकी अभिलाषाएं और इच्छाएं अपने जीवन में प्रवेश करवाना चाहता हूँ। I take all my hopes and lay them at your feet, मेरे सभी आशाएं मैं आपके कदमों पर लाता हूँ and I only take the hope that is in you and put it in my heart. और मैं सिर्फ आप में से आने वाली आशाओं को लेकर अपने हृदय में डालना चाहता हूँ। I take all my dreams and lay them at your feet. मैं अपने सभी स्वप्न या फिर आशाएं लाकर मैं आपके कदमों पर रखता हूँ। I only take the dreams that you have for me and put them in my heart. मैं सिर्फ वही सपनों या फिर आशा इच्छाओं को लेता हूँ जो आपके हित के हिसाब से। I take the crown that's upon my head right now and lay at your feet. मैं उस ताज को जो मेरे सर पर है मैं आपके कदमों पर रखता हूँ। Those things that I think that are important to me, I lay them at your feet. और जो चीजें मुझे लगती है कि जरूरी है मैं वो आपके कदमों पर रखना चाहता हूँ। That crown of gold and stones and shiny, I take them out, put them at your feet. और सोने चांदी हीरो का ताज मुकुट मैं आपके पैरों पर रखना चाहता हूँ। And I put upon myself the crown of thorns that you carried. आमीन। मैं उस कांटे भरी उस ताज और मुकुट को रखना चाहता हूँ जो आपने लादा या फिर आपने स्वीकारा। Change my heart today, Lord. मेरे हृदय को बदल दो परमेश्वर। Make it like yours. आपके समान बना दीजिए। I want a new life today. मैं एक नया जीवन आज प्रार्थना करता हूँ। I ask it in Jesus' mighty name. मैं यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम में मांगता हूँ। आमीन। Amen. Amen. We will continue with this series. Please stick with us. Don't become lazy, because there's so much God is showing me that's going to change your life forever. आमीन। आप इस सीरीज से हम आगे बढ़ेंगे। हताश ना होइए, पीछे ना जाइए। परमेश्वर बहुत सी चीजें बातें कर रहा है मुझसे, मैं आपसे उसे बताना चाहता हूँ, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहे, बंधे रहे, आगे बढ़ते रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया।